In this lecture, we will discuss combinational circuits and adders. A combinational logic circuit is one in which the present state of combination of logic inputs decide the output. Output will be dependent on present state of combination of inputs. The term combination logic means combining two or more logic gates to form a required function, a required logic, where the output at a given instant of time depends only on the present inputs. This is the block diagram of combinational circuit. It may have n input and m outputs. Classification of combinational circuits. Combinational logic circuit can be classified in three categories. First is arithmetic and logic functions. Second is data transmission, and third is code converters. First one is arithmetic and logical function, which includes adders, subtractors, comparators and PLDs. In second classification, that is data transmission, so multiplexer, demultiplexer, encoder and decoder, these are part of transmission, data transmission. And third is code converter, in which we have binary, BCD, 7-segment code converters circuits. Characteristics of combinational circuits. So the first and very important characteristics is the output of combinational circuit at any instant of time depends only on the present input of the circuit, not the previous. The combinational circuit do not use any memory. Combinational circuit में कभी भी memory element नहीं होगा. That's why we can say that जो output है that depend only on present input. The previous state of the input does not have any effect on the present state of the circuit. क्योंकि मेमोरी यहाँ पे है ही नहीं, तो previous state का कोई भी impact present state पे नहीं पड़ेगा. A combinational circuit can have n number of inputs and m number of outputs. Half adder. So first in combinational circuit, the basic element is half adder, then full adder we are going to study here. So first, half adder. Half adder is also a combinational logic circuit which has two inputs and two output. Half adder करेगा क्या? Adder है which we are going to use for addition of two binary bits. The half adder circuit is designed to add two single bit binary numbers A and B. It is basic building block for addition of two single bit number. We know that it has two inputs. Two input will be A and B and two outputs sum and carry. जब भी हम एडिशन करते हैं तो हम उसका सम आउटपुट लेते हैं और कैरी भी जनरेट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कैरी भी एक आउटपुट ऐड किया हुआ है, सम एंड कैरी. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे? ट्रुथ टेबल में हम इंक्लूड करेंगे सारे इनपुट्स एंड सारे आउटपुट्स. Here we have two input and two output. Inputs are A and B and outputs are sum, that is S, and C for carry.
जब भी हम ट्रुथ टेबल लेंगे तो हमें क्या करना है, जितने भी इनपुट्स हैं उनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें लेना है। तो हमने वही किया है, ए और बी की वैल्यू एक बार हमने 0 0 दी है, नेक्स्ट टाइम हमने 0 1 अप्लाई किए, देन 1 0 एंड देन 1 1। ठीक है, तो जब भी हम ऐड करेंगे, हम अगर ऐसे माइंड में सेट करके रखें कि हमें ऐड करना है मतलब सम क्या होना चाहिए, ए प्लस बी। ठीक है, तो बाइनरी में हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो बाइनरी में 0 + 0 होता है 0, तो हमारा सम 0 कैरी 0। ठीक है, बाइनरी में जब हम फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा A0 एंड B1। 0 1 जब हम अप्लाई करेंगे तो सम हमारा क्या होना चाहिए, 0 + 1 इज, सम हमारा आ जाएगा 1। नेक्स्ट है, अच्छा इस केस में जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा था तो हमने 0 लिखा। 0 और 1 के केस में भी कैरी जनरेट नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी हमने 0 लिखा। नेक्स्ट है हमारा सम 1 एंड कैरी 0, तो इस केस में हमारा आउटपुट होना चाहिए सम का 1, कैरी तो 0 रहेगा तो यहाँ पे 0। ठीक है, लास्ट है 1 + 1। 1 + 1 इज़, वी नो 1 + 1 इज़ 0 विथ कैरी 1, तो हमने लिखा सम 0 एंड कैरी 1। ठीक है, तो ये हमारा होता है ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल के बेसिस पे हमें क्या करना है, इस ट्रुथ टेबल के बेसिस पे हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, अब हमें कभी भी ट्रुथ टेबल से जब एक्सप्रेशन निकालना है तो हम कैसे करते हैं, ट्रुथ टेबल में जो भी आउटपुट है हमारा, अभी हम सम के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा सम का कॉलम। तो ये जो सम का कॉलम है, इसमें जहाँ पे आउटपुट हमारा हाई हो रहा है हम वो चेक कर लें। ठीक है, 2 जगह पे हमारा आउटपुट हाई है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 में जो सम आउटपुट है वो हाई है। तो इस केस में हमें इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मिनटर्म होगी हम वो नोट कर लेंगे। यहाँ पे मिनटर्म, यहाँ पे हमारी ए और बी की वैल्यू थी 0 1, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बार बी। उसी तरह से 1 0 है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए बी डैश। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया सम ए डैश बी प्लस ए बी डैश। ठीक है, तो इस सम को हम और क्या लिख सकते हैं, ए XOR बी, ए XOR बी, क्योंकि ए बार बी प्लस ए बी बार किसका एक्सप्रेशन होता है, ये होता है XOR गेट का एक्सप्रेशन होता है, इसलिए हम वी कैन राइट सम इक्वल्स टू ए XOR बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरी, ये है मेरा कैरी। ठीक है, कैरी मेरा आया C इक्वल्स टू A.B। ठीक है, अब कैरी के केस में भी हमें वही देखना है, हम ये हमारा कैरी वाला कॉलम है, इस कॉलम में वी विल चेक फॉर हाई आउटपुट। तो हाई आउटपुट मुझे मिला था इस केस में, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए और बी की वैल्यू थी 1 1, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है A.B, तो इसलिए मेरा जो कैरी था वो क्या आया, A.B। अब ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया है, तो इसी से मैंने एक लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर लिया। लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास क्या था, सम हमने जो जनरेट किया था वो था A XOR B और कैरी था A.B। ठीक है, तो सम मेरा क्या हो रहा था, XOR फंक्शन था, इसलिए हमने इस लॉजिक सर्किट में एक XOR गेट लिया है, उसमें A और B अप्लाई करें तो मुझे मिल गया सम। और इसी लॉजिक सर्किट, इसी इनपुट को हम ए और बी को हम एक एंड गेट में अप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा A.B। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल गया सम एंड कैरी। नेक्स्ट है फुल एडर। अ फुल एडर, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 3 बिट्स एट अ टाइम इज कॉल्ड फुल एडर। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं कि हाफ एडर 2 बिट को ऐड कर रहा है, तो वो सिंगल बिट्स है ना, 2 सिंगल बिट्स को 2 ऐसे नंबर को ऐड कर रहा है जो सिंगल बिट है। उसी तरह से फुल एडर ऐसे नंबर्स को ऐड करेगा 3 जिसमें सिंगल बिट्स होंगी। अभी जो हमने हाफ एडर देखा उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है
कि उसमें जब कैरी जनरेट होगा तो नेक्स्ट स्टेज में हम उस कैरी को ऐड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब हम दो ऐसे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं जिसमें कोई कैरी जनरेट हो रहा है तो उस कैरी को हम नेक्स्ट स्टेज में हम ऐड नहीं कर पाते। तो उस डिसएडवांटेज को हम ओवरकम करने के लिए फुल एडर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल एडर में हम दो ऐसे नंबर को ऐड कर सकते हैं जिसमें कैरी जनरेट हो रहा हो। ठीक है, दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या हो जाएंगे, 3 इनपुट हैं A B C इन और आउटपुट है सम एंड कैरी आउट। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉर द फुल एडर। अब ट्रुथ टेबल फुल एडर की भी बनाएंगे हम, तो वही चीज़ हमें देखना है। हम सारे इनपुट ले लेंगे, तो मैंने सारे इनपुट ले लिए A B C इन और जितने भी आउटपुट हैं हम वो सब ले लेंगे। एडर है तो हम 2 आउटपुट लेते हैं, सम एंड कैरी। ठीक है, अब हम A B C के सारे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है हम सारे इंक्लूड कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो हमने 0 0 0 से 3 वेरिएबल हैं तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो जो भी हमारा बाइनरी सीक्वेंस है वही नोट कर लेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 अप टू 1 1 1 हमारा ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब इस केस में भी हमें वही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लें, 0 + 0 + 0 तो सम 0 कैरी 0, 0 + 0 + 1 तो हमारा सम क्या हो जाएगा 1। इस केस में भी कैरी 0 रहेगा। नेक्स्ट है 0 1 0। ठीक है, 0 1 0 मतलब सम 1 कैरी 0। थर्ड है 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो 0 + 1 1 1 + 1 0 विथ कैरी 1। ठीक है, तो 0 विथ कैरी 1। नेक्स्ट है 1 0 0, हमारा सम आया 1 कैरी 0। 1 0 1। ठीक है, 1 0 1 में क्या होता है, 1 0 होता है मतलब 0 कैरी 1, तो 0 कैरी 1। फिर 1 1 0 में भी 2 1 आ गए हैं तो वही चीज़ आएगी, सम 0 कैरी 1। लास्ट केस है हमारा 1 1 1। जब 3 टाइम्स हम 1 को ऐड कराते हैं बाइनरी में तो हमारा आउटपुट होता है 1 1 मतलब सम 1 विथ कैरी 1। ठीक है, तो सम 1 कैरी 1। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हम इसका एक्सप्रेशन निकाल लें। तो 3 वेरिएबल हैं तो हम इसको के मैप से सॉल्व कर लेते हैं। के मैप फॉर कैरी ले लिया मैंने, के मैप फॉर सम भी ले लिया। अब यहाँ पे हम जैसे हम सम का देखें ना, तो सम का कॉलम हमारा ये है और इसमें जब जब भी हमें आउटपुट 1 मिलेगा वहाँ पे हमें के मैप में उसकी मिन टर्म्स हमें नोट करके रख लेनी है। ठीक है, ये 4 केस हैं जहाँ पे हमारा सम हाई मिल रहा है। कहाँ कहाँ पे मिल रहा है सम, 1 2 4 एंड 7। ये 4 मिन टर्म्स हमें मिली इस ट्रुथ टेबल से सम के लिए। ठीक है, तो सम के लिए हमने ये के मैप बनाया हुआ है। तो 1 2 4 और 7 पे हमने 1 को रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्दर ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं थी तो 1 को एनसर्कल किया है। 1 का एक सिंगल ही ग्रुप रहेगा। तो इसका जब हम एक्सप्रेशन देखें तो ये हमारा ये कुछ ऐसा था हमारा, है ना। तो ये हमने लिख लिया, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम देखें, सम को मैं एक्सऑर के फॉर्म में लेके आना चाह रही हूँ। तो जो सम है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन तो हमें दिख नहीं रहा है, जो हमने मिन टर्म्स नोट की थी सम की हमें वही मिल रही हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम एक्सऑर के टर्म्स में लेके आए। ठीक है, तो सम ये था मेरा, ये था A बार B बार C इन प्लस A बार B C बार प्लस AB बार C बार प्लस ABC। अब हम देखें हमारे पास यहाँ पे देखो, अब हम इसको कुछ कॉमन ले लें। हमने यहाँ पे A बार कॉमन ले लिया, फर्स्ट 2 टर्म्स में से A बार मैंने जब कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ इन दोनों में से मैंने A बार कॉमन ले लिया और इन दोनों में से मैंने
ए कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ए बार कॉमन लिया तो मुझे मिला बी बार सी इन प्लस बी सी बार इन, प्लस यहाँ से जब ए कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा ये है बी बार और सी बार, है ना। ए कॉमन लिया तो मुझे मिला बी बार सी बार प्लस बी सी इन, ठीक है। अब हमारा इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या दिख रहा है मुझे, बी बार सी प्लस बी सी बार, ये एक्स और का एक्सप्रेशन है, मतलब बी और सी जो हैं इनमें एक्स और एक्सप्रेशन आ रहा है, तो हमने इसको लिख लिया बी एक्स और सी। उसी तरह से यहाँ पे देखें बी बार सी बार प्लस बी सी, बी बार सी बार प्लस बी सी, ये किसका एक्सप्रेशन है, ये है एक्स नॉर का एक्सप्रेशन। एक्सक्लूसिव नॉर गेट का एक्सप्रेशन होता है एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करें तो एक्स नॉर गेट को हमने किस तरह से लिख लेंगे, ये तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ए बार बी एक्स और सी प्लस ए बी एक्स और सी का होल बार। अब यहाँ पे भी हम और सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है इसको भी हम और फर्दर एक्स और के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, अगर हम बी एक्स और सी को हम एक्स अज्यूम कर लें और इसको हम अज्यूम कर लें एक्स, ये मतलब एक्स है तो ये एक्स बार हो गया, है ना। तो अब हमारा एक्सप्रेशन कैसा बन गया, सम इक्वल्स टू ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स और एक्स, ए एक्स और एक्स। अब एक्स की जगह हम वापस से वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा ए एक्स और बी एक्स और सी, ठीक है। तो हमारा अब जो एक्सप्रेशन सम का निकल गया है यहाँ से वो क्या निकला है, एस इक्वल्स टू ए एक्स और बी एक्स और सी। अब हम इसी तरह से हम कैरी के लिए देख लें, ठीक है। तो कैरी के लिए हमने नोट कर लेंगे, कैरी के लिए भी हमें वही करना है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ट्रुथ टेबल में जहाँ जहाँ कैरी हाई था, यहाँ पे हाई था, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें मिन टर्म नोट करना है, ठीक है। पहला था 0 1 1, मतलब ये हमारी मिन टर्म नंबर 3, फिर 1 0 1 मतलब 5, फिर 6 और 7, 3 5 6 7, ठीक है। इन मिन टर्म्स पे हमारा कैरी हाई हो रहा था। 3 मतलब एक्स डैश वाई जेड, सॉरी ए डैश बी सी, उसी तरह से 5 मतलब ए बी डैश सी, 6 मतलब ए बी सी डैश एंड 7 मतलब ए बी सी। तो हमने ये सारी मिन टर्म्स को यहाँ पे हमारे के मैप में 1 1 मार्क कर दिया और अब हमने उसकी ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग करके हमारे 3 ग्रुप फॉर्म हो गए हैं। तो तीनों ग्रुप की वैल्यू हमने जब नोट करी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हमारा कैरी का एक्सप्रेशन जनरेट हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास सम क्या आ गया, ए एक्स और बी एक्स और सी, और कैरी आया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे हमने फुल एडर का लॉजिक ले लिया। अब यहाँ पे आप है ना फुल एडर के लॉजिक 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो आप बना सकते हो एक आप बना सकते हैं कुछ ऐसा, एक एक्सऑर गेट ले लें, इसमें 3 इनपुट अप्लाई कर दें ए बी सी, और हम 3 एंड गेट ले लें, ठीक है। एक में हम अप्लाई कर दें ए बी, दूसरे में हम अप्लाई कर दें बी एंड सी, और थर्ड वाले में हम अप्लाई कर देंगे यहाँ से ए सी, और इन सबको हम अप्लाई कर दें एक और गेट में, ठीक है। एक एक्सप्रेशन तो आपका ये कैरी, यहाँ से कैरी मिल जाएगा और यहाँ से मिल रहा है सम, ठीक है। एक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो गया है और दूसरा हमारे पास ये है। इसमें हमने क्या करा,
ए एक्स और बी किया, उसका आउटपुट हमने एक तीसरे एक्सऑर गेट में दूसरे एक्सऑर गेट में अप्लाई किया, जिसमें किसके साथ, सी इन के साथ। ये यहाँ पे मुझे मिला ए एक्सऑर बी, इसको हमने अप्लाई कर दिया सी इन के साथ। ठीक है, सी इन यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे सम में क्या मिल जाएगा, ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी। और उसी तरह से हमने कैरी का एक और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन भी यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा सम आ गया और कैरी आ गया। नेक्स्ट है फुल एडर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग 2 हाफ एडर। अब इसके लिए हमारा जो कैरी का एक्सप्रेशन था, इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि अब हम क्या चाह रहे हैं, फुल एडर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं यूजिंग 2 हाफ एडर। तो फुल एडर डिज़ाइन करना था मुझे, तो हमें हाफ एडर के फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा फुल एडर का जो है ना। तो देखो, हाफ एडर के फॉर्म में लाना है, तो हमारे पास हम यहाँ देख लें, ये वाला जो सम का एक्सप्रेशन है वो तो हमें दिख रहा है, कुछ ऐसा होगा, सी इन सम का तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी इन। ठीक है, अब हमने कैरी के लिए क्या किया, कैरी के लिए जो भी हमारी मिन टर्म्स जनरेट हुई थी, हमने उनको नोट कर लिया। कितनी मिन टर्म्स आई थी हमारी, 0 1 1 3, फिर 1 0 1 5, फिर 6 और 7, 3 5 6 7 हमारी मिन टर्म्स जनरेट हुई थी, हमने वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ कॉमन ले लें। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, सी इन कॉमन आ रहा है। तो हमारा क्या मिला, हमें ब्रैकेट में मिला ए बी डैश प्लस ए डैश बी। ठीक है, फिर ये जो सेकंड लास्ट 2 टर्म्स हैं हमारी यहाँ पे, इनमें से क्या कॉमन आ रहा था, इनमें से कॉमन आ रहा था ए डॉट बी। तो जब इसमें से हमने ए डॉट बी कॉमन निकाला, यहाँ से लास्ट 2 टर्म्स में से हमने ए डॉट बी कॉमन निकाला, तो हमें क्या मिला, सी इन प्लस सी इन डैश, ये वाला। तो सी इन प्लस सी इन डैश क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1 होता है। तो वही लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो टर्म रहेगा हमारा, ये सिर्फ ए डॉट बी रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मिला सी इन ए बी डैश प्लस ए डैश बी प्लस ए बी कर दिया। जो सी प्लस सी बार था हमारा, वो हमारा हो गया 1, तो हमने लिखा ए बी। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सऑर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और ऐसे भी लिख लें, सी इन ए एक्सऑर बी प्लस ए बी। ठीक है, तो कैरी अब हमारा क्या हो गया, सी इन ए एक्सऑर बी प्लस ए बी। तो अब यहाँ से देख लें अपन, सबसे पहले मैंने एक एक्सऑर गेट लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए एक्सऑर बी। अब ये हमने एक एक्सऑर गेट और ले लें, उसके साथ हमें क्या करना होगा, सम क्या है हमारा, यहाँ पे सम है ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी इन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सम के लिए हमने एक एक्सऑर गेट लिया, उसमें ए और बी अप्लाई किया, तो मुझे मिला ए एक्सऑर बी। इस ए एक्सऑर बी को साथ में एक और इनपुट अप्लाई कर दूँ, सी इन, तो मुझे यहाँ पे सम क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा जो हमें चाहिए था, ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी। ठीक है, अब हमें चाहिए पहला वाला टर्म हमारा क्या है, अब हमें चाहिए कैरी का एक्सप्रेशन। तो कैरी का एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें एक टर्म हमारे पास है ए डॉट बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक एंड गेट लिया, उसमें ए और बी अप्लाई किए, तो यहाँ पे मुझे मिल गया ए बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला टर्म बनाना है कैरी में। तो इसके लिए हम क्या करें, हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ए एक्स और बी है, तो मैंने यहाँ से ए एक्स और बी ले लिया, इसको अप्लाई किया कैंड गेट में, और एक दूसरा इनपुट हमने यहाँ से ले लिया सी इन।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए XOR बी डॉट सी इन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे टर्म मिल गया मुझे ए XOR बी डॉट सी इन, और यहाँ से मुझे मिला ये वाले एंड गेट से ए डॉट बी। तो इन दोनों को एक और गेट में अप्लाई कर दें तो हमारा कैरी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे देख सकते हैं, ये दो हाफ एडर कहाँ दिख रहे हैं हमें, इसमें दिख रहे हैं आपको। एक हाफ एडर ये हो गया, हाफ एडर का यही एक्सप्रेशन था। हाफ एडर में हम यूज़ करते हैं एक XOR गेट, एक एंड गेट। तो ये एक हाफ एडर हो गया और ये दूसरा हाफ एडर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सर्किट बना रहे हैं, वी आर यूजिंग 2 हाफ एडर and 1 OR gate. In next class we will discuss subtractors.